بہاولپور میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ ڈاکو واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے کہ پولیس نے گھیر لیا۔ اس دوران ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی ہی فائرنگ سے ان کے 3 ساتھی مارے گئے، جس میں گینگ کا سرغنہ عبدالمجید بھی شامل ہے۔ اوکاڑا گارڈے ٹاؤن سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والا 5 سالہ بچے کی لاش برآمد۔ بچے کو تیز دھار آلہ کے ساتھ گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے تفتیش کے لیے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل۔ بچے کے قتل کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ڈی ایس پی سٹی چودھری اشرف کی قیادت میں اسپیشل ٹیم تشکیل۔ پتوں کی تھانہ صدر پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، 2 خواتین سمیت 5 ملزمان کو گاڑی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل آصف حنیف جویا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار ملزمان سے کروڑوں روپے مالیت کی 20 کلو ہیروئن، 2 کلو آئس اور 5 کلو افیون برآمد کر لی گئی، جبکہ دوسری کارروائی میں راہزنی کے متعدد وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے ان سے متعدد موٹر سائیکلیں، ہزاروں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سیوریج کے پانی سے کاشت زہریلی سبزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ سرگودا میں 80 کینال پر کاشت مضر صحت سبزیوں کو ہل چلا کر تلف کر دیا گیا۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی کے مطابق دین کالونی، سلطان کالونی، حسین آباد اور اقبال کالونی کے اطراف میں سیوریج کے پانی سے سرسوں کا ساگ، دھنیا، شلجم اور پالک کی فصل کو تلف کر دیا گیا۔ کاشت سبزیوں کو سبزی منڈی میں سپلائی کیا جانا تھا۔ مردان میں ٹی ایم اے ٹیکسوں کے خلاف ٹرانسپورٹروں نے پہیہ جام ہڑتال کر دی۔ بس اڈوں پر عوام کا رش، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہر کے بڑے بس، فلائنگ کوچ اور دیگر پبلک ٹرانسپورٹروں کے اڈے سے گاڑیاں غائب۔ ہزاروں شہری اور سرکاری ملازمین اڈوں کے باہر پریشان۔ ٹرانسپورٹ صدر کا کہنا تھا کہ ٹی ایم اے کا ٹرانسپورٹرز پر 1000% ٹیکس کسی صورت قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظالمانہ ٹیکس کے پیسے عوام سے وصول کیے جائیں گے۔ حافظ آباد میں بھٹا غشت مزدوروں کا بچوں اور خواتین کے ہمراہ اپنے حقوق کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مزدور اپنے حق کے لیے نعرہ لگاتے رہے، جبکہ بچوں اور عورتوں نے فلیکسز اٹھا رکھے تھے جس پر نعرے درج تھے۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے 98 لاکھ روپے فنڈز جاری کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن عمل درآمد نہ ہو سکا۔ بھٹا مالکان ہمیں پوری اجرت نہیں دیتے۔ اور سعودی عرب کے بولیوارڈ ورلڈ میں ڈولفن شوز کا اہتمام، بچے اور بڑے خوب محفوظ ہوتے رہے۔ ڈولفن شو ملکی اور غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ شو میں ڈولفن مچھلیاں اٹکیلیاں کرتے ہوئے مختلف کرتب اور پینٹنگ کرتی ہوئی دیکھنے والوں کو محظوظ کرتی رہی۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی لطف اندوز ہوئے۔ السلام علیکم، کوہر نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال مانج۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکوؤں نے اپنے ہی ساتھیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس تھانہ سماسٹا کے مطابق ڈاکو واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے کہ پولیس نے گھیر لیا۔ اسی دوران ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق ان کی ہی فائرنگ سے 3 ساتھی مارے گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں میں ایک کی شناخت عبدالمجید عرف کٹو کھپرا بلوچ کے نام سے ہوئی۔ عبدالمجید گینگ کا سربراہ اور جنوبی پنجاب میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، جو چوری، ڈکیتی، راہزنی اور قتل جیسی وارداتوں درجنوں اور میں مطلوب تھا۔
आपको बताएं कि बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस थाना समासटा के मुताबिक डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उनकी ही फायरिंग से 3 साथी मारे गए। हलाक डाकुओं में एक की शनाख्त अब्दुल मजीद उर्फ कट्टू खपरा बलोच के नाम से हुई है। अब्दुल मजीद गैंग का सरबरा और जनूबी पंजाब में खौफ की इलामत समझा जाता था, जो चोरी, डकैती, राहजनी और कत्ल जैसी वारदातों दर्जनों और में भी मतलूब था। उकाड़ा गार्डन टाउन से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले 5 साल बच्चे की लाश राजबाह से बरामद। बच्चे को तेजधार आला के साथ गला काट कर कत्ल किया गया। पुलिस ने तफ्तीश के लिए 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बच्चे के कत्ल के वाक़े की तहकीकात के लिए डीएसपी सिटी चौधरी अशरफ की क़यादत में स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई, जो मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट डीपीओ को देगी। आपको बताएं कि उकाड़ा गार्डन टाउन से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले 5 साल बच्चे की लाश राजबाह से बरामद कर ली गई। बच्चे को तेजधार आला के साथ गला काट कर कत्ल किया गया। पुलिस ने तफ्तीश के लिए 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बच्चे के कत्ल के वाक़े की तहकीकात के लिए डीएसपी सिटी चौधरी अशरफ की क़यादत में स्पेशल टीम तश्कील दी गई, जो मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट डीपीओ को फराहम करेगी। पंजाब फूड अथॉरिटी का सीवरेज के पानी से काश्त जहरीली सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सरगोदा में 80 केनाल पर काश्त मुझे सेहत सब्जियों को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। महकमा फूड के मुताबिक दीन कॉलोनी, सुल्तान कॉलोनी, हुसैनाबाद और इकबाल कॉलोनी के इतराफ में सीवरेज के गंदे पानी से सरसों का साग, धनिया, शलजम और पालक की फसल को तल्फ कर दिया गया है। काश्त सब्जियों को सब्जी मंडी में सप्लाई किया जाना था। कायदो ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों पर काश्तकारों को सख्त वार्निंग जारी की गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का सीवरेज के पानी से काश्त जहरीली सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सरगोदा में 80 केनाल पर काश्त मुझे सेहत सब्जियों को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। महकमा फूड के मुताबिक दीन कॉलोनी, सुल्तान कॉलोनी, हुसैनाबाद और इकबाल कॉलोनी के इतराफ में सीवरेज के पानी से सरसों का साग, धनिया, शलजम और पालक की फसल को तल्फ कर दिया गया है। काश्त सब्जियों को सब्जी मंडी में सप्लाई किया जाना था। कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर काश्तकारों को सख्त वार्निंग जारी की गई है। आपको बताएं कि पतोकी थाना सदर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2 खवातीन समेत 5 मुलजिमान को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी सर्कल आसिफ हनीफ जोया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत की 20 किलो हेरोइन, 2 किलो आइस और 5 किलो अफ्यूम बरामद कर ली गई है। जबकि दूसरी कार्रवाई में राहजनी के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके उनसे मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें, हजारों रुपए नकदी और असलहा बरामद किया गया है। डीएसपी सर्कल के मुताबिक बरामद शुदा मंशियात की भारी मिकदार को पंजाब भर के दीगर शहरों में सप्लाई किया जाना था। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि उबाड़ों में आटे के स्टॉल पर खरीदारी के दौरान खवातीन और मर्दों में झगड़ा, एक खातून जख्मी हो गई। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल पर पहुंच गई और इसी दौरान खरीदार आटे का थैला हासिल करने के लिए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। इसी दौरान खवातीन की तजलील भी होती रही। शहरियों का कहना था कि आटा मनपसंद अफराद में तकसीम किया जाता है, जबकि गरीब आदमी बस मुंह देखता रह जाता है। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि महकमा फूड का अमला अपनों को नवाजने में मुलविस है। जिला इंतजामिया को फौरी नोटिस लेना होगा। आपको एक बार फिर आगाह करें कि उबाड़ों में आटे के स्टॉल पर खरीदारी के दौरान खवातीन और मर्दों में झगड़ा, एक खातून जख्मी हो गई। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल पर पहुंच गई और इसी दौरान खरीदार आटे का थैला हासिल करने के लिए एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता होते रहे। इसी दौरान खवातीन की तजलील भी हुई। शहरियों का कहना था कि आटा मनपसंद अफराद में तकसीम कर दिया जाता है, जबकि गरीब आदमी बस मुंह देखता रह जाता है। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि महकमा फूड का अमला अपनों को नवाजने में मुलविस है। जिला इंतजामिया को फौरी नोटिस लेना होगा। बहावलपुर थाना सिटी पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।
मट्ठू गैंग के 2 बड़े मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जा से 2.5 लाख रुपए से जायद रकम बरामद, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी पकड़ लिया गया। इस मौके पर डीपीओ बहावलपुर का कहना था, शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए पुलिस दिन रात मसरूफ अमल है और ऐसी मजीद कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। आपको बताएं कि बहावलपुर थाना सिटी पुलिस के जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मट्ठू गैंग के 2 बड़े मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जा से 2.5 लाख रुपए से जायद रकम, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी पकड़ लिया गया। इस मौके पर डीपीओ बहावलपुर का कहना था, शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए पुलिस दिन रात मसरूफ अमल है और ऐसी मजीद कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। उबाड़ो एक्साइज पुलिस की कार्रवाई। सिंध और पंजाब बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान कार से आला क्वालिटी की 1 मन से ज्यादा चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में यूनस और अयाज मीर अफरीदी शामिल है। एक्साइज पुलिस के मुताबिक चर्स कार के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि उबाड़ो एक्साइज पुलिस की कार्रवाई सिंध और पंजाब बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान कार से आला क्वालिटी की 1 मन से जायद चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में यूनस और अयाज मीर अफरीदी शामिल है। एक्साइज पुलिस के मुताबिक चर्स कार के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। अब आपको बताएं कि घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 18 दिन पहले अगवा होने वाले 2 मुखबियान को पुलिस मुकाबला के बाद बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक 14 दिसंबर को सफ्तर और फयाज को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया, जिनकी बाजियाबी के लिए घोटकी पुलिस ने कच्चा में मुसलसल ऑपरेशन जारी रखा हुआ था। आज खुफिया इतला मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। ताहम जवाबी फायरिंग से अगवाकार मुखबियान को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वालों में शहरियों को वरसा के हवाले कर दिया गया। आपको बताएं कि घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 18 दिन पहले अगवा होने वाले 2 मुखबियान को पुलिस मुकाबला के बाद बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक 14 दिसंबर को सफ्तर और फयाज को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, जिनकी बाजियाबी के लिए घोटकी पुलिस ने कच्चा में मुसलसल ऑपरेशन जारी रखा हुआ था। आज खुफिया इतला मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। ताहम जवाबी फायरिंग से अगवाकार मुखबियान को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वाले शहरियों को वरसा के हवाले कर दिया गया। बुलेटिन में खबरें का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाड़काना में जुल्फकार रहमानिया मस्जिद के करीब नामालूम चोर 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की कीमती कपड़े और 80,000 रुपए नकदी चोरी कर रफू चक्कर हो गए, जबकि एक मेडिकल स्टोर से कीमती दवाइयां भी गायब। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुतासरीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि डकैती और चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डीआईजी मामले का फौरी नोटिस ले। आपको बताएं कि लाड़काना में जुल्फकार रहमानिया मस्जिद के करीब नामालूम चोर 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के कीमती कपड़े और 80,000 रुपए नकदी चोरी कर रफू चक्कर हो गए, जबकि एक मेडिकल स्टोर से कीमती दवाइयां भी गायब। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुतासरीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि डकैती और चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डीआईजी मामले का फौरी तौर पर नोटिस ले। चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची की न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी पर सुपे हाईवे का मार्केट कमेटी के मेंबरान और ताजरों के हमरा दौरा किया। दौरे के दौरान चेयरमैन मार्केट कमेटी अली जमान जोखियों ने सफाई सुथराई का निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार किया और मंडी में दाखिल होने वाले चोर रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म दिया।
मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे राजा बलोच की ये रिपोर्ट। चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची ने न्यू सब्जी मंडी व फ्रूट मंडी सुपर हाईवे का मार्केट कमेटी के मेंबरान और ताजरों के हमरा दौरा किया। दौरे के दौरान चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची अली जमान जोखियों ने सफाई सुथराई के निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार किया और मंडी में दाखिल होने वाले चोर रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म भी दिया। मौके पर चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सब्जी व फ्रूट मंडी के ताजरों, आबादगारों और सार्फिन की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मंडी के चोर रास्तों की बंदिश के बाद चोरी और राहज़नी की वारदातों में खातरख्वाह कमी आएगी, जबकि अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मजीद इक़दाम उठाएंगे। मौके पर ताजरों ने चेयरमैन अली जमान जोखियों की काविशों को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दौरे के दौरान इंक्रोचमेंट कमेटी के इंचार्ज ईद मोहम्मद गबोल, मेंबर मार्केट कमेटी कदीम आगा, ताजर रहनुमा अफजल खान व दीगर भी चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची अली जमान जोखियों के हमरा। मर्दान में TMA टैक्सों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल कर दी। बस अड्डों पर आवाम का रश, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर के बड़े बस, फ्लाइंग कोच और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के अड्डों से गाड़ियां गायब। हजारों शहरी और सरकारी मुलाजमीन अड्डों के बाहर परेशान दिखाई दिए। ट्रांसपोर्ट सदर का कहना था कि TMA का ट्रांसपोर्टर्स पर 1000% टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं है। इन्होंने कहा कि जालिमाना टैक्स के पैसे अवाम से वसूल किए जाएंगे। आपको बताएं कि मर्दान में TMA टैक्सों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल कर दी। बस अड्डों पर आवाम का रश दिखाई देने लगा। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर के बड़े बस, फ्लाइंग कोच और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के अड्डों से गाड़ियां गायब हो गई। हजारों शहरी और सरकारी मुलाजमीन अड्डों के बाहर परेशान दिखाई देने लगे। ट्रांसपोर्टर सद का कहना था कि TMA का ट्रांसपोर्टर्स पर 1000% टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जालिमाना टैक्स के पैसे अवाम से वसूल किए जाएंगे। चिश्तिया और गिरदोनवा में बल्दिया की मुबैना गफलत के बायस वाटर सप्लाई गुज़िश्ता 6 रोज से खराब। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। महाजिर कॉलोनी, महबूब कॉलोनी, MPA चौक, खयाबान कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी समेत दीगर इलाकों को पीने के साफ पानी की अदम फराहमी ने लोगों को बेहद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि कई बार दरख्वास्त दी लेकिन कोई इकदाम नहीं उठाए गए। डिप्टी कमिश्नर फौरी नोटिस लेकर पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। आपको बताएं कि चिश्तिया और गिरदोनवा में बल्दिया की मुबैना गफलत के बायस वाटर सप्लाई गुज़िश्ता 6 रोज से खराब। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। महाजिर कॉलोनी, महबूब कॉलोनी, MPA चौक, खयाबानी कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी समेत दीगर इलाकों को पीने के साफ पानी की अदम फराहमी ने लोगों को बेहद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि कई बार दरख्वास्त दी लेकिन कोई इकदाम नहीं उठाए गए। डिप्टी कमिश्नर फौरी नोटिस लेकर पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। अब आपको बताएं कि शाहकोट में काश्तकार ने बागबानी के जदीद तरीका इख्तियार करके फी एकड़ पर अमरूद के पौधे लगाए हैं और इनसे कम अरसा में पैदावार भी ज्यादा हासिल की है। देखते हैं हमारे नुमाइंदे मियां बिलाल की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में अमरूद तकरीबन तमाम इलाकों में पाया जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो हर किस्म की ज़मीन में उगाया जा सकता है। शाहकोट के बगात मुल्क भर में अपनी अलग शोहरत रखते हैं। खास तौर पर सहराई और गोला इकसाम के अमरूद जायका और लज्जत में अपना सानी नहीं रखते। इन्नियां मेहनतां कराउणे, मजदूरियां कराउणियां, किले दे उत्ते 60-60 65 हज़ार रुपया साडा खर्चा आ जांदा वा। इन्नी मेहनत कराउण दे बाद अगर बाग बेचदे आ या फसल कटदे आ या किन्नू दा बाग वागे ये अमरूद दा वा ਇਹ ਮੰਡੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਲ ਚ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਖਾਦ ਪਾਈ ਦੀ ਆ, ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਆ ਸਪਰੇਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। शाहकोट में एक तरक्की पसंद काश्तकार ने बागबानी के जदीद तरीके अख्तियार करके फी एकड़ पर अमरूद के पौधे भी लगाए हैं और इनसे कम अरसे में पैदावार भी ज्यादा हासिल की है। अगर महकमा ज़राअत के बताए हुए तरीकों पर इन बागात की देखभाल की जाए
تو اس سے آمدنی اور پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین زیگم ریاض کے ساتھ میاں بلال، کوہ نور۔ ہری پور میں تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے ٹوبیکو کنٹرول سیل کی طرف سے سینئر صحافیوں کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تمباکو نوشی کو روکنے کے لیے صحافیوں کی جانب سے متعدد سفارشات بھی پیش کی گئی۔ ڈچ کوٹ میں بیوہ خاتون بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہمت اور جرت کی مثال بن گئی۔ مانگنے کی بجائے لنڈا بازار میں کپڑوں کا سٹال لگا لیا، لیکن گاہک نہ ہونے پر شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے خالد ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ ڈچ کوٹ اللہ تعالیٰ کسی کو غریب نہ کرے۔ ڈچ کوٹ غریب بیوہ ماں، ایک بیٹی اور ایک معذور بیٹے کی ماں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور گھر کا چولہا چلانے کے لیے مین بازار ڈچ کوٹ پرانے لنڈے کے کپڑے فروخت کرنے پر مجبور۔ ڈچ کوٹ غریب ماں سارا دن چارپائی پر پرانے لنڈے کے کپڑے لیے گاہک کا انتظار کرتی ہے۔ کسی دن لنڈے کے کپڑے فروخت ہوتے ہیں اور کسی دن نہ ہونے کی وجہ سے خالی جیب گھر لوٹ جاتی ہے۔ بھائی میں غریب عورت ہوں، روڈ تے میں پرانے ڈنڈے دے کپڑے ویچ رہی ہیں، میری کوئی مدد کر دے۔ میری ایک جوان بچی ہے، وہ میں شادی کر سکاں۔ جوان میرا بچہ ہے، سائیں لوگ آ، بیمار ہے، نہ وہ علاج جو کہ میرے کو پیسے ہے۔ میں کپڑے کو ویک جاتا روڈ تے تے ٹھیک ہے، روٹی ہاں پکا لی دی ہے، روٹی کھا لی دی ہے، نہیں تو بس چاہ پانی پی کے گزارا کر لیدا ہے۔ تے میں منت والی گل ہی ہے کہ میری مدد کر دے۔ کرایہ دار ہاں، کرایہ تے رہنی ہے، بچی بھی جوان ہے، بہت پریشان رہنی ہے رات دیہڑی۔ مگر ڈچ کوٹ کے کسی مسیحا نے اس ماں کو نہ کوئی امداد دی اور نہ ہی کسی سیاسی اور سماجی شخصیت نے پوچھا، لیکن پھر بھی غریب ماں حوصلہ نہ ہارتی ہے اور لنڈے کے کپڑے روزانہ کی بنیاد پر فروخت کرنے کے لیے دکان لگاتی ہے اور اپنی جوان بیٹی اور معذور بیٹے کا پیٹ پالنے کی کوشش کو آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ خالد ڈوگر، کوہ نیوز، ڈچ کوٹ۔ ڈچ کوٹ کے جہاں پر سرمایہ دار مدد۔ فاروق آباد میں دنیا کے دوسرے اور سب سے بڑے ادارے برائے ذہنی امراض فاؤنٹین ہاؤس فوم میں سالانہ فش فوم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ آج کے دن ڈاکٹرز اور ڈونرز اپنی فیملی کے ہمراہ آتے ہیں اور فیمیل ممبران ذہنی مریضوں سے مل کر ٹائم گزارتے ہیں۔ تقریب میں مہمانوں اور ممبران کے لیے ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کا رقص کروایا گیا اور فوم سے نکالی گئی 5 اقسام کی 20 من فش مہمانوں کو گفٹ کی گئی۔ اس موقع پر ادارے کے ہیڈ ڈاکٹرز اور ڈونرز نے کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آج ہم فاروق آباد کے فیسٹیول پہ آئے ہیں، یہاں پہ آ کے اٹس لائک بین گریٹ پلیئر ٹو بی ہیئر بیکاز میں لاہور سے آئی ہوں، تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ فاروق آباد میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا یہ فاؤنٹین ہاؤس بھی ہم نے فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے اور یہاں پہ جو سارے پیشنٹ سے مل کے اور جو ہم نے ماحول دیکھا ہے کہ دے آر لائک ایڈیکویٹلی ٹریٹڈ اور انہیں بہت اچھا ماحول مل رہا ہے۔ ان کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے لائک ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ اور جو ساری ان کی روٹین ہے اس کو وہ فالو کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہر قسم کی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں ساتھ ساتھ اور ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال اٹس لائک ٹریمینڈس ایفرٹ دیٹ از ڈن بائی فاؤنٹین ہاؤس۔ اور لاہور کا ہمیں پتہ ہے فاؤنٹین ہاؤس کا کہ اس کی اپنی ایک روایات ہیں، لیکن یہاں پہ وزٹ کر کے آج یقیناً دل خوش ہو گیا ہے کہ لائک ہم فاروق آباد میں بھی اور اس طرح کے جو ہے ہمارے دیہی علاقے اس میں بھی ہم اس طرح کی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے بھی اور جو ہم دور سے بھی آ رہے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی فش فیسٹیول اور جو سارا ان کا انتظام ہے بہت اچھا ہم نے یہاں پہ بھی کافی لوگوں کو دیکھا ہے فش فارمنگ جو یہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت اچھی انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، پلس ہارس کا وہ جو سارا شو تھا وہ بہت اچھا جب آپ ویلکم کرتے ہیں اور وہ سارا یہاں جس جن کے ساتھ ہم آتے ہیں اس کے ساتھ انسانی یہاں اسپیشل لوگ ہیں جن کو ان کے اپنے معاملات ہم ان کے دل جول کے لیے باقی یہاں جو ہمارے ڈونر ہیں ان کے لیے ان کے لیے اچھا ایجوکیشن فشنگ ہوتی ہے لوگ دیکھا نہیں ہوتا خاص طور پر پلس اس کی ایکسائٹمنٹ ہے وہاں پھر یہاں جو ماشاء اللہ ڈانسنگ ہاؤس بھی ہے ڈائننگ ہاؤس بھی ہے اور بھی وہ ایک موقع ملتا ہے اس کا انسانی زندگی میں جو نارمل ان کو بھی اثر کرتا ہے اور جو بیچارے جن کو
दूसरी बात यह है कि ज़मीन के मिलने से अल्लाह खुश होता है, इस मामले में। आपको बताएं कि कोटरी में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो आटे की कीमत 140 तक जा पहुंची। अवाम महंगा आटा लेने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ कोटरी शहर और साइट में मुख्तलिफ फ्लोर मिल की जानिब से 12 स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल पर मौजूद शहरियों का कहना था कि शहर में आटे की फी किलो कीमत 140 हो गई है, जो हम खरीद नहीं सकते। महकमा खुराक की जानिब से यह अच्छा इकदाम उठाया गया है, जो कि आटे के सस्ता स्टॉल लगाकर हमें रिलीफ दे रहे हैं। दूसरी जानिब मौजूद मिल मालिकान का कहना है कि फ्लोर मिल की जानिब से अवाम को रिलीफ दिया गया है। अवाम बदनज़मी होने की वजह से मुश्किल का शिकार है। हमारे पास मौजूद स्टॉल्स पर सबको आटा मिल जाता है। आपको बताएं कि कोटरी में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो आटे की कीमत 140 तक जा पहुंची। अवाम महंगा आटा लेने पर मजबूर। दूसरी तरफ कोटरी शहर और साइट में मुख्तलिफ फ्लोर मिल की जानिब से 12 स्टॉल लगाए गए। स्टॉल पर मौजूद शहरियों का कहना था कि शहर में आटे की फी किलो कीमत 140 हो गई, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। खुराक महकमे की जानिब से ये अच्छा इकदाम उठाया गया है, जो कि आटे के सस्ते स्टॉल लगाकर हमें रिलीफ दे रहे हैं। दूसरी जानिब मौजूद मिल मालिकान का कहना था कि फ्लोर मिल की जानिब से अवाम को रिलीफ दिया गया है। अवाम बदनज़मी होने की वजह से मुश्किल का शिकार हैं। हमारे पास मौजूद स्टॉल्स पर सबको आटा मिल जाता है। लकी बरवत में तहसील चेयरमैन सराय नौरंग अजीजुल्लाह खान ने फलाही तंजीम CFC या मनान के ताउन से अमीनाबाद के मुख्तलिफ गलियों में वाटर सप्लाई का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। तहसील नवरंग की चेयरमैन अजीजुल्लाह खान ने फलाही तंजीम के तावन से अमीनाबाद की मुख्तलिफ गलियों में अपनोशी पाइपलाइन बिछाकर इलाका मकीनों का दीरीना मसला हल कर दिया। वाटर सप्लाई पाइपलाइन का बाकायदा इफ्तिताह इंजीनियर मनवर खान और जुमा मुफ्ती इरफानुल्लाह ने किया, जबकि इस मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन की जिली सदर अब्दुल गफार फरियादी, जनरल सेक्रेटरी गुलनवर खान समेत दीगर मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन इंजीनियर मनवर खान और मुफ्ती इरफानुल्लाह खान का कहना था कि कोटका अमीनाबाद में वाटर सप्लाई पाइपलाइन जंग आलूदा होकर शदीद टूट फूट का शिकार होने से इलाके के लोग मुअज्जर सेहत पानी पीने पर मजबूर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं है CFC में या मन्नान के लिए, सैयद मनाजिर अली नासिर और सुरैया नासिर के लिए, कि मैं किन अल्फाज के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हकीकत में इन पसमानदा इलाके में गरीब आवाम के लिए पानी का, साफ़ पानी का इंतज़ाम करना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। पीने के पानी से हमारे 70% बीमारियां पीने के पानी की वजह से बनती है। इन पसमानदा इलाके में बहुत गरीब इलाका है, इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि इन गलियों में ये घर में इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि पीने का साफ पानी मुहैया हो सके। या फिर वो दूर दराज इलाकों से पीने के लिए पानी लाया करते थे। ताहम तहसील नवरंग की चेयरमैन अजीजुल्लाह खान ने फलाही तंजीम के तावन से अमीनाबाद के 6 मुख्तलिफ गलियों में 6000 फुट तवील पाइपलाइन बिछाकर इलाके मकीनों का दीरीना मसला। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स पंजाब के सेक्रेटरी असदुल्ला का लाहौर एक्साइज ऑफिस रीजन B फैसल टाउन का अचानक दौरा। टैक्स दहिंदगान की शिकायत के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी इंस्पेक्टर से ब्रीफिंग ली। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स पंजाब के सेक्रेटरी ने दफ्तर की सफाई सुथराई को बेहतरी के लिए एडमिन ETO को तलकीन की। अफसरान को शहरियों के साथ बाअखलाक तरीके से पेश आने का भी कहा। सेक्रेटरी असदुल्ला ने दफ्तर के माहौल को बेहतर और अफसरान को ईमानदारी से प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी करने की हिदायत की। आपको एक बार फिर आगाह करें कि महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स पंजाब के सेक्रेटरी असदुल्ला का लाहौर एक्साइज ऑफिस रीजन B फैसल टाउन का अचानक दौरा। टैक्स दहिंदगान की शिकायत के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी इंस्पेक्टर से ब्रीफिंग ली। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स पंजाब की सेक्रेटरी ने दफ्तर की सफाई सुथराई की बेहतरी के लिए एडमिन ETO को तलकीन की। अफसरान को शहरियों के साथ बाइखलाक तरीके से पेश आने का भी कहा। सेक्रेटरी असदुल्ला ने दफ्तर के माहौल को बेहतर और अफसरान को ईमानदारी से प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी करने की हिदायत की। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स पंजाब के सेक्रेटरी असदुल्ला का लाहौर एक्साइज ऑफिस रीजन B फैसल टाउन का अचानक दौरा।
टैक्स दहिंदगान की शिकायत के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी इंस्पेक्टर से ब्रीफिंग ली। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स पंजाब के सेक्रेटरी ने दफ्तर की सफाई सुथराई की बेहतरी के लिए एडमिन ईटीओ को तलकीन की। अफसरान को शहरियों के साथ बा-इखलाक तरीके से पेश आने का भी कहा। सेक्रेटरी असदुल्ला ने दफ्तर के माहौल को बेहतर और अफसरान को ईमानदारी से प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी करने की हिदायत की। मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सराय आलमगीर बुराक सिटी की जानिब से रेलवे अंडरपास और तरक्याती मनसूबों पर काम तेजी से जारी। सैयद ज़ियाउल्लाह शाह और मोहम्मद कामरान ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रेलवे अंडरपास बनने से बुराक सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मकीनों का दरीना ख्वाब पूरा होगा। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत के लिए इस सोसाइटी के तामीर कर रहे हैं ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज का भी अपने घर का ख्वाब पूरा हो सके। पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब और डिप्टी कन्वीनियर CEC काजी शफीक ने मुस्लिम लीग नून के सदीकुल फारूक के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि सानेहा मॉडल टाउन के इंसाफ में ताखीर निज़ाम इंसाफ की कमजोरी है। शवाहिद जाहिर करते हैं कि इस वक्त की पंजाब हुकूमत ने साजिश के तहत तहरीक रोकने के लिए सानेहा मॉडल टाउन जैसा वाक़या रूनुमा करवाया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के मरकजी तर्जुमान और साबका सेक्रेटरी इतलात सिद्दीकुल फारूक साहब ने सानिया मॉडल टाउन पर अहम इंकशाफात किए। काजी शफीक साहब से सानिया मॉडल टाउन के बारे में मौक़िफ़ लेते हैं। वो सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, उन्होंने 2 दिन पहले इंकशाफ किया कि सानिया मॉडल टाउन जो था वो लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसमें डॉक्टर ताहिर कादरी, इमरान खान और परवेज इलाही इसमें शामिल थे। तो इस बारे में आपका ज़रा मौक़िफ़ जानते हैं। उसमें जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो है कि कोई भी ऐसी क़यादत नहीं होती कि जो अपने कारकुनों को मरवा के खुदा न खास्ता इस तरह की तहरीक बर्पा करना चाहे। कि सबसे पहले IG पंजाब को 1 दिन पहले तब्दील किया जाता है। जो मुश्ताक सुखेरा थे उनको बलोचिस्तान क्वेटा में वो थे, वहाँ से 1 दिन पहले ट्रांसफ़र किया जाता है लाहौर। जो DCO लाहौर थे उसको 1 दिन पहले तब्दील किया जाता है, उसकी जगह कैप्टन उस्मान को लाया जाता है DCO लाहौर। तीसरा, इस वाक़े से 1 दिन पहले राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के मिनट्स आज तक JIT और सब अदालतें मांग रही है, लेकिन उसके मिनट्स आज तक कोई नहीं दे रहा। वहां पर यह फैसला होता है कि हमने इनको सबक सिखाना है और ये कत्लेआम करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो तजावजात सिर्फ मॉडल टाउन में डॉक्टर ताहिर कादरी के घर के बाहर लगी थी? उसके लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि 20 से ज्यादा थानों की पुलिस, 20 SSPs, आपका DCO, आपके तमाम इंपोर्टेड जिम्मेदारान वो एट द सेम टाइम मौके के ऊपर मौजूद है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये सारे वो वाकयात हैं, शवाहिद हैं जो ये बात साबित कर रहे हैं कि ये नून लीग का कत्लेआम का एक प्री प्लान जो था वो उनका मंसूबा था। 11 बजे के बाद जाके फायर होता है और गोलियां चलती हैं और 14 लोग वहां शहीद हो जाते हैं और 100 लोगों से जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये बाकायदा एक पहले से बनाया हुआ मंसूबा था, उनकी साजिश थी। वो किसी भी कीमत पर इस तहरीक को रोकना चाहते थे। क्या आपकी वकला टीम कमजोर है या फिर आप खुद डिले टैक्टिस कर रहे हैं? मॉडल टाउन का इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा, तो क्या सिद्दीकुल फारूक साहब की इस बात को दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं? देखिए, अब ये निज़ाम इंसाफ अगर आपका स्ट्रांग होता, अदालतें स्ट्रांग होती, तो आज 9 साल में इसका कोई एक जजमेंट तो आ जानी चाहिए थी। बेशक हमारे अगेंस्ट ही आ जाती ना, उनके हक में आ जाती, लेकिन कोई जजमेंट तो आती ना। जजमेंट ही नहीं आई, फैसला ही नहीं आया। अब उनसे पूछे कि अगर आप मुजरिम नहीं है, आप ये समझते हैं कि हम इस थाने के अंदर मुलविस नहीं थे, तो JIT को चलने देना, JIT की रिपोर्ट आने दे। मुलविस नहीं होंगे तो आप बरी हो जाएंगे। ये सिद्दीकुल फारूक साहब की अपनी असेसमेंट है, बट मुझे नहीं पता कि क्या है। लेकिन मुझे ये बात पता है कि कोई तो है जो इसको आगे नहीं चलने दे रहा। कि इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है, कैमरे दिखा रहे हैं कि जो लोग गोलियां मार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सुब्तैन खान, सीनियर सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल, सूबाई वज़रा मियाँ महमूद रशीद, राजा बिशारत, सरदार हुसनैन बहादुर दुरेशक, सरदार आसिफ नकई, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आमिर जुल्फकार और दीगर भी उनके हमरा थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। 2004 में इस बिल्डिंग का चौधरी परवेज इलाही ने संगे बुनियाद रखा था। नई असम्बली में अगले 100 साल की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए 500 अराकीन की गुंजाइश मौजूद है।
स्पीकर चैम्बर अफसरान, मीडिया और विजिटर्स के लिए 800 अफराद तक की गुंजाइश है। नई असम्बली में वजीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ारा और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में दफातर बनाए गए हैं। 3 कमेटी रूम और 1 कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा लाइब्रेरी और कैफेटेरिया की भी सहूलत मौजूद है। 400 गाड़ियों की पार्किंग भी रखी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान, सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद, राजा बिशारत, सरदार हसनैन बहादुर दरेशक, सरदार आसफ नकई, सरदार शहाबुद्दीन, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आमर जुल्फकार, साबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएम सिकंदर, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक, डीजी प्रोटोकॉल पंजाब अंसर नजीर और आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मुजाहिद शेरदिल, मोहम्मद खान भट्टी, जैनब उमैर, आईजी पंजाब आमर जुल्फकार, साबक फेडरल सेक्रेटरी जीएम सिकंदर, राय मुमताज हुसैन बाबर, मियां इकबाल चौधरी, आसम नवाज चीमा, असद शरीफ ढल्लू, जुबैर लतीफ, डॉक्टर आबद बोदला, इमरान अहमद, मरियम राठौर और दीगर को शील्ड से नवाजा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर मियां महमूद मोहम्मद जावेद लतीफ ने नादरा एग्जीक्यूटिव ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था? कौमी शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए शेखुपुरा के अवाम को परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कप्तान पर उन्होंने किस तरह तनकीद की, बता रहे हैं मोहम्मद बेग अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने नादरा एग्जीक्यूटिव ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मियां जावेद लतीफ के हमरा डीजी नादरा मोहम्मद मतीन, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं व कारकुन नान ने शिरकत की। आने वाले मेहमानों को डीजी नादरा मोहम्मद मतीन व अमला की जानब से फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। इस मौका पर मियां जावेद लतीफ ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए शेखपुरा के अवाम को परेशानी व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। वक्त की अहम जरूरत ही अवाम की आसानी व बेहतर सहूलत के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। आज इस जो ऑफिस का इफ्तिताह है, इससे यकीनन इस इलाके के लोगों को भी सहूलत मिलेगी। सियासी सूरत हाल पर मियां जावेद लतीफ का कहना था कि कैसा इनकलाबी है, अदारों को आवाजें देता है कि आयन व कानून से हटकर आप मुदाखलत करो और मुझे फिर से वही जगह लेकर आओ। ये कैसा इनकलाबी है जिसने आयन शिकनी की, और मैं ये समझता हूँ कि वर्दी वाला आयन शिकनी करे तो कानून के अंदर है, आर्टिकल 6 की जद में वो आता है, मगर कोई कानून आयन बगैर वर्दी वाले को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। वो आयन शिकनी करे, उस पर आर्टिकल 6 ना लगे जो रूल कासिम सूरी ने इमरान खान की ख्वाहिश पर आरिफ अलवी ने अदा किया था। इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इमरान खान की ख्वाहिश पर आरिफ अलवी ने इन्होंने अदा किया था, इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं हुए। आज भी इसको जो सहूलतकारी दी। रावलपिंडी थाना सिविल लाइन की हदूद ढोक चरागदीन में सगे भाई का मकान और स्कूल पर कब्जा करने की कोशिशों के साथ जान से मारने की धमकियां। मजीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना सिविल लाइन की हदूद ढोक चरागदीन के रिहायशी सैयद ताहिर हुसैन शाह के मकान पर सके भाई सैयद अदनान का कब्जा करने की कोशिश और जान से मारने की धमकियां। सैयद ताहिर ने बच्चों की तालीम के लिए घर में स्कूल बनाया, जिसको सके भाई ने सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए ताले लगाकर कब्जा कर लिया। इस हवाले से मुतासिरा शख्स ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरी तो पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरा मेरी जारिश है कि सर मैं दिल का मरीज हूँ। मैंने 26.5 साल 27 साल वर्षात की नौकरी की है, ठीक है सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस मकान का मैं भी याद है का वारिस हूँ। मेरी वालदा फौत हो गई थी 2018 में, 2020 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। उसके बाद 2 साल में चरपाई पे लगा रहा हूँ सर, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी। तो मेरे भाई ने झूठे स्टाम्प बनवाए हुए हैं, रजिस्ट्री मेरी काबू की है। मेरे बच्चों का जो बैंक में वालदा ने जेवर रखवाया हुआ था, मानता ने इसको नेक्स्ट वर्किंग रखा था, तमाम तकरीबन सारे सबूत इसने जो है वो काबू किए हुए हैं। और मैं जब भी अपने बच्चों की और अपना हक मांगता हूँ जब, और मेरे पैसे भी 11,65,000 रुपये आज वर्कशॉप से मुझे रिटायरमेंट के बाद मिला है। मेरे तमाम चीज़ें जो सी हैं वो इसने काबू की हुई हैं। और सर जब मांगता हूँ, ठीक है, ये मुझे आगे से धमकियाँ देता है। ये PTI की कोर कमेटी का मेंबर भी है, इसके 62 लोगों के साथ तल्लुकात हैं। मैंने थाना सिविल लाइन में 15 भी करवाई है, इसके बावजूद
मेरा वहाँ पे कोई भी जो है ना वो दरामद नहीं हुआ मुझे, बल्कि वहाँ पर पीटीआई के बंदों को इसने बुलाकर इसने वहाँ पर मुझसे झूठी बात कह के कि जी हम आपको राजीनामा कराएंगे, जगह बिठाएंगे, ठीक है ना, ये वहाँ से उठाकर ले आए हैं। उसके बाद मैंने थाने में 3-4 दफ़ा दरखास्तें भी दी हैं, एक दफ़ा CPO ऑफिस से भी दरखास्त दी, लेकिन जो इधर नहीं पहुँच सकी, ना ही मेरे साथ कोई जो है ना वो हेल्प कर रहा है मेरी। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है ना, मेरे जो सारे सबूत हैं, जो मैं भी हकदार हूँ, मैं भी वारिसों में शामिल हूँ, तो ये मेरे जो जितने भी सबूत हैं मेरे भाई से, ये PTI की कोर कमेटी का मेंबर है, इसके बाद सर लोगों के साथ तल्लुकात हैं, ठीक है ना, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं लड़ाई झगड़े वाला नहीं हूँ, मैं डेड लाइन पे खड़ा हूँ, मेरे दिल के 3 वाल बंद है, डॉक्टरों ने हार्ट सर्जरी बोली हुई है मुझे, ब्लड प्रेशर का, शुगर का मैं मरीज हूँ, ठीक है, और नीचे स्कूल में भी मेरी भाभी ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने ताले लगाए हुए हैं और हमें मेरे बच्चों को रासा करते हैं, कहते हैं जी जाओ थाना जेल की चेहरी करो, आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरा सब कुछ लेकर सबूत लेकर इन्होंने अब मुझे धमकियां दे रहे हैं और मुझे रासा कर रहे हैं बार बार। तो सर प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप गलियों नालियों मोहल्लों को बजाय इसके ठीक करने के थोड़ा सा हम लोगों पर भी थोड़ा सा निगाह डालें। मैं काजियाबाद मोहल्ला काजियाबाद डोकचरादीन रावलपिंडी का रिहायशी हूँ, गली नंबर 7 का रहने वाला हूँ, ताहिर हुसैन शाह मेरा नाम है, सब तमाम मुझे जानते हैं सर, मेरे बड़ों से MP MNA से और काउंसलर से और जनाब पाशोकर साहब के कमांडेंट साहब और डिप्टी कमांडेंट साहब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा हक मुझे दिलाया जाए, मेरे बच्चों का हक मुझे दिलाया जाए। कराची गोट मलीर में सालाना अजीमुशान जश्न 11वीं शरीफ उर्स मुबारक बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जिसमें उलमा नातख़्वां समेत इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। देखते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। दारुल उलूम मदरसा सुबहानिया रहीमिया यूसुफ आरफानी गोट मलीर में सालाना अजीमुल शान जश्न 11वीं शरीफ उर्स मुबारक बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें उलमा नातख़्वां समेत इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। 11वीं शरीफ उर्स मुबारक तलावत कलाम पाक से शुरू हुआ, जिसमें मशहूर नात ख्वानों ने रूह परवर नाते सुनाई, जिससे महफिल में बैठे शुरका में समा बन गया। रूह परवर महफिल से खिताब करते हुए खतीब अहले सुन्नत मौलाना कोकब नूरानी ओकाड़वी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फजल वाले हैं, जिनका सबसे ऊंचा मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेतहाशा कुर्बानियां दी, जिसकी बदौलत इस्लाम जिंदाबाद है। इनका कहना था कि मजहब इस्लाम इंसानियत और सच्चाई का नाम है, जिसकी वजह से ही दुनिया भर में लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर फख्र महसूस कर रहे हैं। 11वीं शरीफ के रूह परवर महफिल में उम्मत मुस्लिमा और मुल्क पाकिस्तान की सलामती और सऊदी अरब के बुलेवार्ड वर्ल्ड में डॉल्फिन शोज का एहतमाम, बच्चे और बड़े खूब महसूस होते रहे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में बुलेवार्ड वर्ल्ड में जहां दुनिया भर के लोग दीगर तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं डॉल्फिन शो भी मुल्क और गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिसमें डॉल्फिन मछलियां उठकेलियां करते हुए मुख्तलिफ करतब और पेंटिंग करती हुई देखने वालों को महसूस करती रही, जिन्हें देखकर बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी लुत्फ उठाया। हुजरा शाह मुकीम में मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरी बिलबला उठे। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम और गिरदनवाह में मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। गोश्त की कीमत 500 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई। गोश्त की इस बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी बिलबला उठे। खरीदारों का कहना है कि ये मैं गोश्त लेने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने जब रेट का पूछा है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 500 रुपए का किलो है। अब 500 रुपए का किलो गोश्त जो है वो गरीब आवाम कैसे खाएगी? तो मेरा ये कहना है कि इस पे जो है फौरी एक्शन लिया जाए। ये गोश्त पहले 300 रुपए किलो था और अब इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है तो यही गोश्त 500 रुपए किलो हो गया है। तो ये गरीब आवाम के लिए लेना मुश्किल हो गया है। उनके घर का पता नहीं पहले क्या हालात हैं, लेकिन अब वो तो उनकी गोश्त उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। दूसरी जानब मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदार हजरात भी बढ़ती हुई कीमतों के बायस कम बिक्री पर परेशान दिखाई देते हैं। गोश्त महंगा हो गया है, 400 ते इस वेले 92 रुपए का रेट है। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋ बेच जाते था, ਹੁਣ साढ़ा 10 किलो बेचना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लें ताकि मुर्गी का गोश्त आम आदमी को भी मुयस्सर आ सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ मलिक सरफराज अहमद। नारंग मंडी की यूनियन कौंसिल घड़ियाल कलां में साल नौ और क्रिसमस की खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा चौधरी जवाद रसूल बसरा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा चौधरी जवाद रसूल बसरा एडवोकेट ने गरियाल कला में नए साल की आमद और क्रिसमस के हवाला से मुनक़दा मसीही तकरीब में चौधरी सईदुल्लाह जुठावल, मास्टर मोहम्मद शफीक बसरा, मास्टर मोहम्मद सरवर बसरा और मास्टर तारक बसरा के हमरा तकरीब में शिरकत की और केक काटा और मुस्लिम बरादरी को जिला मूसाखेल में सरदार मोहम्मद हनीफ खान मूसाखेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहरियों से अपील की है कि वो आने वाली मर्दमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलशेर खान की इस रिपोर्ट में। सरदार हनीफ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आने वाले मर्दमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। मजीद जानते हैं सरदार हनीफ खान के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कڅو غلطي افواجانی په علاقه کې خوروي دا غلطه خبره په 2002 کې زموږ آبادی 1,50,000 ده په لیک وتلې په لیک لیکل سوي او له هاي واره بیا خالی 1,2,000 سره د 12,000 په مشک خالی آبادی په 200 کلو کې په مشک به دور خلک زیاته سوي دي نو دا ناروا په دا طریقه باندې د مخنیوي کېدلای شي چې د پنجاب او د سند او د خیبر پښتونخوا خلک کچیر ناکابو ډول د لیش کوم عزیزان قریبان او غولو د داشنیت کارډونه او د ډیټا وراولږي او لنن زغه پر د کار شروع کوي د خپل ډیټا به جمع کوي سره پر یو ځای کوي به بیا بیرالجی مسخیل په مسخیل کې بیا مرده دی کم ستا خلک تللی دي په مزدوري په سیل ملک ځا خبر تللی دي اورسیز پاکستانیان ورته یای د هغه د ووټ هم حق لري او د اندراج هم حق لري لیکن د مسخیل کچیر د مسخیل हाफिजाबाद में भटाखश मजदूरों का बच्चों और खवातीन के हमरा अपने हकूक के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज की क़यादत भट्टा मजदूर यूनियन गुलाम अब्बास हैदरी कर रहे थे। मजदूर अपने हक के लिए नारे लगाते रहे जबकि बच्चों और औरतों ने फ्लेक्सिस उठा रखे थे जिस पर नारे दर्ज थे। मजदूरों का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने उनके बच्चों की तालीम के लिए 98 लाख रुपए फंड जारी करने का ऐलान किया लेकिन अमल दरामद न हो सका। भट्टा मालिकान हमें पूरी उजरत नहीं देते। मजदूरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत उन्हें बुनियादी हकूक फराहम करे। सामरू में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों शहरियों की एहतजाजी रैली मीरपुर खास रोड पर धरना दे दिया जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि आटा 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गरीब के लिए एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। घरों में फाका कशी पर मजबूर हैं। आटा सस्ता ना किया गया तो सिंध भर में एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। बन्नू के नवाही इलाके जानीखेल में अमनो अमान के हवाले से ग्रैंड अमन जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में बन्नू, शमाली और जनूबी वजीरिस्तान के हजारों अफराद ने शिरकत की। जलसे के शुरका ने हुकूमत से अमन की बहाली का मुतालबा कर दिया। तफसीलात फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जानीखेल मंडी में होने वाले ग्रैंड अमन जलसे में जानीखेल, बन्नू, शिमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान के हजारों अफराद शरीक हुए जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान शामिल थे। जबकि मखसूस मेहमानों में ANP के सरदार हुसैन बाबक, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के MPA मीर कलाम वजीर और चीफ ऑफ वजीरिस्तान डॉक्टर गुलालम वजीर व दीगर शामिल थे। जलसे के मुकर्रिरीन ने जानीखेल में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के हवाले से अरबाब इख्तियार पर शदीद तनकीद की और इत्तेहाद व इत्तेफाक को हालात सुधारने का बेहतरीन नुस्खा करार दिया। जलसे के शुरका ने मुतालबा किया कि जानीखेल कौम के साथ किए गए 8 नुकाती अमन मुआहिदे को जल्द अज जल्द अमली जामात। मरकजी अंजुमन जिला मर्दान ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जिसमें हजारों की तादाद में ताजिर समेत अवाम ने शिरकत की। रैली की क़यादत मरकजी तंजीम के सूबाई सदर जाहिर शाह कर रहे थे। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। इस मौका पर जाहिर शाह का कहना था कि कुछ अनासिर मज़मूम अज़ाइम के जरिए पाक फौज और पाकिस्तानी मुईशत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए हम अपने फौज और इदारों के साथ खड़े हैं। आपको बताएं कि मरकजी अंजुमन जिला मर्दान ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जिसमें हजारों की तादाद में ताजिर समेत अवाम ने शिरकत की।
रैली की क़यादत मरकजी तंजीम के सूबाई सदर जाहिर शाह कर रहे थे। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। इस मौका पर जाहिर शाह का कहना था कि कुछ अनासिर मज़मूम अज़ाइम के जरिए पाक फौज और पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए हम अपनी फौज और इदारों के साथ खड़े हैं। वजीराबाद के इलाका सारोकी में सुपर लीग का इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत खिलाड़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तकरीब के शुरका का कहना था कि जिस्मानी नशोनुमा को भी मलहूज़ खातिर रखना इंतहाई नागुज़ीर है। खेलों से नौजवानों में ना सिर्फ आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है बल्कि इससे बेहतरीन तरबियत होती है। नौजवान नस्ल को फिजिकल फिटनेस के लिए ऐसे खेलों में दिलचस्पी लेना चाहिए, क्योंकि खेल के मैदान आबाद करके हम मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।